everyone. Welcome to Bookswagon. Today we have with us Miss Shweta Pada. Shweta Pada is an artist and storyteller whose work flows seamlessly across performance, literature, and human connection. She's a renowned actress with a background in theatre, film, education. Her writing explores inner stillness, identity, and moral restlessness, inviting readers to pause, reflect, and reconnect with themselves. Thank you so much for being here, ma'am. Our readers would love to know your journey. How has it been till now, and how does it feel to be in the world of authors? Thank you, pretty girl. And Mansa, thank you for inviting me for this interview. Journey has always been fantastic, of course. If I say that there has not been any roller coaster or no obstacles, then I am lying. But because I have been brought up by saying that there should be no lies in your life, so keeping that in my mind, I'm enjoying this journey and looking forward with all positivity and blessings and good wishes from all my well-wishers. So I'm whatever I've said, because of these people, I'm sitting in front of you. Okay. So, ma'am, we know from your Instagram that you're an actress, you're an educator, now you're an author as well, and you've been in Miss India as well. So, please tell us, how do you get this energy? Like in these times, people find it tough to stick to one skill set, and you're doing all of them tremendously. All right. So I just mentioned that the positivity, the good energy, and the zeal and the enthusiasm and the spark, I never allowed that to go away from me. So there's a child, inner child, who is still wanting to, play, want to juggle in the life, and with all strength and positivity and good energy, I'm moving forward. एक वो होता है ना कि एक शेर है जो मेरा बहुत ही खास पसंदीदा शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो मेरी जो अपब्रिंगिंग है, जो सलाहियतें हैं, वो इस तरह से ही हुई है कि अपने आप गड्ढा खोदें और पानी निकालें। तो कर्मठता, the doings, the action is in my blood, and the honesty and the loyalty towards my craft and towards myself. So I am very true to my soul. करना है तो करना। इन एनी वेज मेरी राशि जो हॉरोस्कोप है वो भी धनु है, तो हमारा तो काम ही टारगेट पे नजर रखना है। सो रिस्क इन चैलेंजेस, पॉजिटिविटी एंड गुड एनर्जी एंड द zeal to keep going is my mantra. All right. Beautiful, ma'am. So, ma'am, just this one thing that I've heard, that every writing that a writer writes has some reflection of their personal life. How much do you think your life is inculcated in what you write? Well, you know what? If I say that whosoever is a writer is just writing from what is coming in his head or her head and just penning it down, you know what? If I talk about myself, I have written what all I have experienced in my life. It is not only my life that I've mentioned in this particular book, but of course, if you are, there in my life, I've written that particular scenario, what has happened to you, how you have dealt with that, and whatever I'm trying to tell in this book, तो वो आपसे कैसे रिलेटेड है। तो ऐसे ही मैंने अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, अपने साथ के लोगों को उनकी दुनिया में जो हो रहा है और जो मेरे साथ घटा है, उसको कैसे डील वो करते हैं और क्या किया जा सकता है, so as to calm down, not getting or escaping from the storm, but being present at that moment, getting still, silent, and dealing with that storm. So that is what I had in my mind, and whatever comes in my mind, I write it down. उसके बाद हम उसको कहानी के फॉर्म में भी पिरोना करते हैं, and that is what I get as a resultant. Yeah. And your latest issue, Storm to Stillness, where did this idea exactly came from? I just mentioned that there had been times where, अच्छा मैं ये बता दूं कि मैं एक क्षत्रिय, I'm a warrior. How I'm a warrior? Because I find myself,
as a black sheep in the family जो ढर्रा या रेबल in a positive manner कि जो दुनिया करती है वो मैं भेड़ चाल पे क्यों करूं। तो जैसे पानी का बहाव है, I have always been moving opposite to that। तो मुझे अपनी एक जगह बनानी थी और मुझे ऐसा है कि जिंदगी में कुछ कर दिखाना है, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, वो मेरे खुद के लिए, मेरी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए। तो इतना आसान नहीं है पानी के और बहाव में, हवा के रुख के ऑपोजिट में आपका चलना और वो दुनिया एक्सेप्ट कर ले। बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे एक्यूजेशंस, बहुत सारे ब्लेम्स, बहुत सारी जिंदगी में हमने देखे, सुने, एक्सपीरियंस किए। तो सबको दरकिनार करके मैंने कुछ लिखने की कोशिश की और वो सब एक्सपीरियंसेस ही हैं जो मैंने इसमें डाले हैं। सो आई एम एक्चुअली वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव रिटन। आई फील रिलैक्स्ड कि कुछ लोग होते हैं जो जुबान पे चीजें आई हुई नहीं बोल पाते, तो वो एक जरिया है, एक मीडियम है कि आप लिख के उसे जाहिर कर दें। So ma'am, all of these areas and these industries that you're connected with, where do you feel the most alive? To tell you the truth, very honestly, मैं उस मोमेंट में जीती हूँ। तो मेरे लिए एक्टिंग, उस वक्त शूट पे, सेट पे अलाइव होना, इस वक्त आपके साथ यहाँ बुक्स वैगन में अलाइव होना, या मेरे पब्लिशर्स के स्टूडियो पे जहाँ मेरी किताब बिक रही है और मेरा इतना अच्छा वेलकम हो रहा है, मैं हर जगह पे बहुत खुश होकर उस जगह, उस वक्त को, उस वक्फे को महसूस करती हूँ। तो मेरा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है कि मुझे ये करने से खुशी मिलेगी, मुझे करने से खुशी मिलती है। आई बिलीव इन गीता में जो एक वाक्य है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मैंने आपको ये बता दूं कि मेरी जिंदगी का पहला गिफ्ट जो मेरे वालिद ने मुझे, मेरे फादर ने दिया था, वो गीता दी थी। तो बिलोंगिंग टू अ वैदिक फैमिली, मेरे जो अपब्रिंगिंग या सलाहियतें हैं वो गीता से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव या कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब मुझे बाहर नहीं मिलता या किसी से नहीं मिलता, जिसके पास आप एक गो टू प्लेस होती है ना, अगर ना हो तो गीता इज माई गो टू प्लेस। सो आई ओपन द चैप्टर, एनी चैप्टर, आई गेट द सोल्यूशन फ्रॉम दैट। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, दिस इज द फैक्ट ऑफ माई लाइफ। सो आई बिलीव कि कर्म करो, ऊपर वाला है, पर ऑनेस्टी के साथ। दिस इज व्हाट इज माई फॉर्मूला। So there's this one question that the little girl in me, and I'm sure all little girls out there would want to ask. As a girl, it's this thing that we've been told कि एक साथ इतनी चीजें जगल मत करो, एक जगह पे पढ़ना है पढ़ाई करो, शादी करनी है शादी करो, काम करना है काम करो. So you managed to juggle all of it together, and I am really impressed by this. So please tell me, what is the formula for this? जिंदा दिली किसी चीज का नाम है, और मैंने कहा ना, वो जो आग है अंदर, वो तो तभी बुझेगी जब मैं यहाँ से जाऊंगी। और टॉकिंग अबाउट कि आप बहुत सारे काम, तो मैं आपको एक वाकया बताती हूँ कि किसी बहुत पहले की बात है कि किसी बहुत अच्छी पोस्ट के लिए मुझे बुलाया गया था फॉर द जॉब। तो वहां जब ये सब देखा, अच्छा ये भी, तो देन दैट पर्टिकुलर पर्सन, द ऑथराइज्ड पर्सन, आस्क्ड मी, मास्टर ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल। तो मुझे वहां रिजेक्ट कर दिया गया था। देन दैट डे आई थॉट कि मैं जवाब बहुत जल्द दूंगी। कुछ 6-8 महीने के अंदर मुझे दोबारा कॉल आया, सेम पर्सन, ही माइट हैव फॉरगॉटन मी बट आई डिड नॉट। फिर से वही प्रोफाइल बट थोड़ी एनहांस्ड, थोड़ी कुछ ज्यादा एड ऑन हो चुका था। तो देन ही सेड, मैंने कहा सर दिस इज द सेम पर्सन, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, एंड आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. I am the Paplu who will make you win the game, right? The Joker. Yeah. But Joker is a very skilled, very artistic, very strong with all her skills and abilities. तो आज आपने मुझे फिर बुलाया। ये 6 महीने पहले आपने मुझे एक गाली दी थी, आज ये वही गाली मेरे लिए एक एडवांटेज बन के आपके सामने। I believe ये जो दुनिया कहती है ना, इसमें आप माहिर हो जाइए, ऐसा नहीं है। ये एक जिंदगी है, जी भर के जिए, जो करना है करें, और यही दुनिया आपको फिर यहाँ से यहाँ बैठाती है। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल. देयर हैड बीन मेनी फिंगर्स पुटिंग टुवर्ड्स माय पर्सनालिटी, कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। आज वही पुरानी पिक्चर्स जो उस समय उनके साथ थी, आज वो पिक्चर्स टैग कर रहे हैं विद देयर राइटिंग एंड अप्रेजिंग मी। कुछ बोलना नहीं है। मेरे फादर ने सिखाया, एक चुप 100 सुख, और काम आपका शोर मचाएगा।
हो रहा है वो. So I'm very happy, I'm very satisfied, I'm very contented, and the journey that I am in, that is called transcendence. उसमें कोई desire, wants, needs नहीं है. मैं काम कर रही हूँ और मुझे जो मिल रहा है मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ. Gratitude is my formula, so I'm happy. Okay. तो मैम हमें सूत्रों से पता चला है that you are also a very beautiful shayer. Please tell us a little bit about बज़्म दास्तां, and अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ अर्ज कर सके तो. Yes, so I'm the founder of Buzme Dastan, and Buzme Dastan is a musical storytelling spectacle wherein I tell stories. Along with that, I am an Urdu poetess, so whatever I have written, तो वो जो उससे जुड़ा हुआ कोई शेर होता है हम वो पढ़ते हैं. उसी के साथ साथ हमें जो उससे जुड़ा हुआ कोई गाना होता है, which is not Bollywood at all, I don't endorse that. तो हम सूफी भी गाते हैं in this thing. So एक शेर अर्ज है आपके लिए कि आपसे आज मुलाकात हो रही है तो बहुत ही खूबसूरत वक्फा है. अभी एक मेरे बहुत खास दोस्त हैं मयूर साहब, आज उनसे कुछ गुफ्तगू हो रही थी तो ये शेर मैं उनके लिए भी पढ़ना चाहूंगी कि गुफ्तगू अच्छी लगी ज़ौक़े नजर अच्छा लगा. गुफ्तगू अच्छी लगी ज़ौक़े नजर अच्छा लगा, बड़ी मुद्दतों के बाद कोई हम सफर अच्छा लगा. कि दिल का दुख जाना, कि दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है, कि दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है. उनका हमसे यूं हंसकर हमारा हाल पूछ लेना अच्छा लगा. So this is I dedicate it to you, Bookswagon, and that person who has met me recently, and इस तरह से ही कारवा बनता चला जाता है. This is what is Buzme Dastan. All right. So, ma'am, is there something about your book specifically that you'd like to share about the readers, like how you're expecting them to connect with it? Yeah. My book is a binge read, to be very honest. It is hardly 120 pages. Like, abhi I'm staying a little far from this place. I think 1.5 or 2 hours. और अगर आप दिल्ली से मुंबई फ्लाई करते हैं तो आप पूरी किताब पढ़ सकते हो उस 1.5 घंटे में. और मैं वहां से ट्रैवल करके यहाँ आ रही हूँ तो आप उस तरह से that is not a very heavy or a difficult vocab use किया हुआ किताब, लिखा हुआ किताब. इस किताब के बारे में ये है, as a name suggests, storm to stillness. तो तूफानों से लड़ना नहीं चाहिए, तूफानों के साथ दोस्ती करनी चाहिए. तूफानों को नजर मिला के बात करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि आप आए हुजूर, एहतराम आपका, आप चाय पिए, मुस्कुराए और आपका रास्ता वो है, आप उनको बिल्कुल रुखसती दीजिए. ठहरा हुआ पानी भी, स्टैग्नेंट जो वाटर होता है वो बीमारी का घर होता है. तो जस्ट इट्स रिटन इन गीता ऑल्सो, और बुद्धिज्म भी इसको कहती है कि आप थॉट्स को ना एक्नॉलेज कीजिए लेकिन उनके साथ मत बह जाइए. You stay steady, stay still, stay silent, and उनका काम है आना और उनका काम है जाना, क्योंकि जो आया है हो जाएगा. गीता में जब ये कुरुक्षेत्र, जब महाभारत हो रही थी तो कृष्ण ने अर्जुन को देखा और अर्जुन बहुत ही परेशान हो गए थे कि ये मेरे फादर है, मेरे ताया जी है, मेरे कजिन्स हैं एंड एवरीबॉडी, और मैं इन पे कैसे हथियार चला दूं. तो वो अपने हथियार डालने को रेडी हो गए. तो कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन तुम धनुर्धारी अर्जुन हो, पीपल लुक अप टू यू, यू आर द बेस्टेस्ट, तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा. कृष्ण चाहते, जो कि जिसने लीला रची थी, कृष्ण चाहते तो उस युद्ध को 2 मिनट में गायब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यही तेरी असल परीक्षा है. तो यहाँ खड़े हो, अपनी तकलीफों को, अपने परेशानियों को देखो इनके फॉर्म में, and deal with them without disturbing your mindset. So the real peace, which is stillness, you cannot achieve going to mountains or वो retreats. ये जो मैं और आप कर रहे हैं ना, ये भी यहाँ भी पॉसिबल है उस साइलेंस को, स्टिलनेस को, प्रेजेंट मोमेंट को फील करने के लिए. So we talk about this in this book. All these internal, external जितने chaos है हमारी लाइफ में, your email notifications, काम का प्रेशर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप इश्यूज, माँ का बच्चे के लिए, हस्बैंड वाइफ, तो सारे जितने ये लाइफ के chaos है उनको डील करना कैसे, it's written in this book, in my way. Yeah. I'm pretty sure this book is a reflection of who you are, and people will connect with that for sure. Thank you so much. I would want to
talk about my publishers, if you allow me. Yeah. Sure. Yeah. You know what? Debutant authors के लिए publishers ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अलिन माहेश्वरी साहब का, यानी अनबाउंड स्क्रिप्ट पब्लिकेशंस का, कि उन्होंने मेरी किताब को वो मकाम दिया. मेरे सपने को एक्चुअली सच करने के लिए उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है. कोई भी इतनी आसानी से किसी को मौका नहीं देता इस जमाने में. उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया एंड आई एम इन डेट टू हिम एंड द होल ऑफ द टीम. मैं और लिखती रहूंगी और अच्छा लिखने की कोशिश करूंगी. मुझे पहला मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आलन साहब. एंड थैंक्स टू जीशान एंड शराज, दे आर माय सन्स, एंड वॉट एवर आई एम यू कैन सी इन मी, इट्स बिकॉज ऑफ देम. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू मनसा. Thank you so much for being here, ma'am, giving us your time. It was lovely talking to you. Same here, same here. Thank you. Thank you. Hey guys, I'm Shweta and I'm here sitting at Bookswagon. It is India's largest online bookstore. My book, you're going to find it here. This is really a superb and very welcoming bookstore. Do not forget to buy my book on Bookswagon. See you guys.